अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम ऑनलाइन सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ ऑन चैप्टर असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एटिकेट्स, presented by the vocational trainer Saeed Behjat Yusuf from Government Higher Secondary School, Khag Badgam, Trade, Media and Entertainment. So let's start. आज हम समझेंगे कि assertive communication क्या होता है। Assertiveness is communicating and expressing your thoughts, feelings, and opinions in a way that makes your views and needs clearly understood by others without putting down their thoughts, feelings, or opinions. Assertiveness क्या होता है? जब आप कम्युनिकेट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी ओपिनियंस इस तरीके से कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्लियरली समझ पाता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, और जो भी आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिस बंदे के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं उनका जो थॉट है, उनकी जो फीलिंग्स है और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको हम हर्ट नहीं करते हैं। Assertiveness is the ability to express our thoughts and feelings openly in an honest, appropriate, respectful and direct way. जब आप communicate करते हैं आप किस तरीके में करते हैं? एक honest तरीके में, appropriate तरीके में, respectful तरीके में और direct way में। मतलब आप घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। It can be hard to do, but it gets easier with practice. हुआ assertive communication होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली अपना पॉइंट बोलते हैं, मगर आपको क्या करना है, आपको जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उनको पूरी रेस्पेक्ट देनी है और ऐसे उस तरीके से बात नहीं करनी है जिससे उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो ओपिनियंस है वो हर्ट हो जाए। Then comes etiquette. Etiquette is defined as the formal manners and rules that are followed in social and professional settings. Etiquettes होते हैं आदाब। Good etiquettes in communication are very essential. जब आप बात करते हैं वहाँ पे एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेदर यू आर एट ऑफिस और इन अ सोशल गैदरिंग डज नॉट मैटर। चाहे आप ऑफिस में हैं, किसी गैदरिंग में हैं, आप घर में हैं, आप फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, आप फ्रेंड्स के साथ हैं, जहाँ पे भी आप हैं, जहाँ पे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पे एटिकेट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। This familiarity means that making a good impression is particularly important. एक good impression जो होता है वो बहुत important होता है. And what may be perceived as poor social skills can hurt your career in a long term. However, it is not hard to make a good impression. जो भी हम good impression देते हैं वो किस वजह से आता है? जब आप में etiquettes होंगे। Now following are some of the suggestions. Extend a warm greeting. A handshake, smile and a polite "How are you today" are all expected whenever you meet someone. ठीक, जब भी आप किसी से मिलेंगे, चाहे आप दोस्त से मिलेंगे, आप बॉस से मिलेंगे, आप किसी फैमिली मेम्बर से मिलेंगे, किसी भी एल्डर से, किसी भी यंगर से मिलेंगे, हमेशा शेक योर हैंड्स, स्माइल से बात करनी चाहिए और पोलाइट तरीके से हालचाल पूछना चाहिए। Try to avoid small talks about personal topics like family and politics. कभी भी किसी बंदे के साथ उनकी पर्सनल टॉपिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए। If you accidentally touch upon a sensitive topic, अगर आप एक्सीडेंटली कोई भी पर्सनल टॉपिक उठा लेते हैं या कोई सेंसिटिव टॉपिक उठा लेते हैं, इट कुड मेक future interaction awkward. Number 2 is maintain eye contact. In many cultures, it may be considered impolite or rude to maintain eye contact with another person. बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे आंख मिला के बात करना जो है उसको बदतमीजी माना जाता है। In the United States, however, eye contact is an absolute must. United States में जब भी आप communicate करते हैं वहाँ पे eye contact जो है वो rude नहीं माना जाता है।
If you do not maintain consistent eye contact, people may assume you are uninterested in what is going on or are being dishonest. अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसका क्या इंप्रेशन आता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है. Number third is be punctual. People place a lot of importance on being on time for events. If you are attending a business meeting, it is extremely important that you arrive at your destination a few minutes early. जब भी आप किसी मीटिंग के लिए जाएंगे, आपको हमेशा ये मद्देनज़र रखना है कि आप कुछ मिनट 5-10 मिनट पहले पहुँचे. People who arrive precisely when a meeting is set to begin are often considered late, as it may take a few minutes to get settled, which will delay the start of a meeting. अगर 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी है और आप 10 बजे ही पहुंचेंगे, उसको भी कंसिडर किया जाता है कि आप लेट आए, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट करने में, आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने में या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने में टाइम लगता है. इसीलिए बोला जाता है जब भी आप किसी मीटिंग में जाए, चाहे बिजनेस मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग हो, आपको कुछ मिनट पहले पहुंचना चाहिए ताकि आपकी जो सारी प्रिपरेशंस हो वो टाइम से पहले कंप्लीट हो. And the fourth point is be prepared to host meetings. If you have clients, अगर आपके ऑफिस में क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप 15 मिनट पहले ही तैयार रहे. द मीटिंग स्पेस शुड बी इन ऑर्डर एंड रिफ्रेशमेंट शुड बी मेड अवेलेबल. जो भी मीटिंग की तैयारियां होगी वो रेडी होनी चाहिए टाइम से पहले, और हमेशा जो भी बंदे, जो भी क्लाइंट, जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको रिफ्रेशमेंट सर्व करना चाहिए. If you are conducting a meeting in your office and will be busy during the 15 minutes before the meeting is set to begin, make sure there is someone available to greet the guest upon arrival. अगर मीटिंग के टाइम पे आप बिजी हैं, आप गेस्ट को अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप नहीं तो जो दूसरा बंदा ऑफिस से है वो आपके गेस्ट को अटेंड कर पाए. You never want to leave someone in your reception area wondering what to do. कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर या जो भी गेस्ट आएंगे कि वो आपके ऑफिस पहुंच के वो परेशान हो जाए कि हमें कहाँ जाना है. हमेशा एक बंदा उनके वेलकम के लिए रेडी होना चाहिए. Then comes point number 5, that is be yourself. Being perceived as genuine is extremely important in the United States. We know that people are different and we like to get to know each other for that reason. Thus, there is no need to pretend to be something you are not just to curry favors. हमेशा जो आप हैं वही रहिए, उसी तरीके में अपने आप को प्रेजेंट कीजिए. कभी भी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए जो आप हैं नहीं. इन बोथ बिजनेस एंड सोशल इंटरेक्शन, पीपल आर जनरली फ्रेंडली एंड आउटगोइंग. Being yourself, extending a warm greeting, and showing up on time will go a long way in ensuring your success in social situations. हमेशा जो आप हैं उसी तरीके से खुद को प्रेजेंट करना चाहिए. वो एक चीज़ कल को हमारी सक्सेस में ऐड ऑन करेगा. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. Thank you for patient listening. Stay home, stay safe, and don't forget to mask up. Thank you.